Hello students, have a good day to all of you. I am Devjain Tripathi. Today we will start our topic electron gain enthalpy and electronegativity from chapter classification of elements and periodicity in the properties. So let's start to the first topic, that is the electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? When a neutral gaseous atom add an extra electron to its outer shell orbit, the amount of energy released at that time, that amount of energy is called electron gain enthalpy. जब एक न्यूट्रल गैसेस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इन इट्स आउटर ऑर्बिट्स में जब एंटर करता है टू फॉर्म ए एनायन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वहाँ पे जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So it's proved that gaseous atom, for example, here I am taking X, when it will be added extra electron, it will be form X minus, that is in the anion form. Therefore, the amount of energy that will be released must be in the negative sign, because here the energy is released. Next one is, if we compare between any two elements, here I am taking oxygen and fluorine. Here the oxygen will gain an extra electron to form oxygen minus or oxygen anion, and here here the amount of energy released in case of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, where the fluorine add an extra electron to form fluorine anion, and the amount of energy released, that is the minus 328 kilojoule per mole. So it's proved that when we move from left to right along the period, the atomic size decreases. As you know, from oxygen to fluorine, the fluorine is the atomic number 9 and the oxygen has the atomic number 8. So after the oxygen, the fluorine will become, and the atomic number increases with decreasing atomic size and increasing इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. So next goes to successive electron gain enthalpy. What is successive electron gain enthalpy? As you know, the successive word is come from the word succession. What is succession? One after the other means जो कि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पढ़े थे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम जब रिमूव करते हैं तब उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यहाँ पे क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करेंगे. अगर उसका कैपेसिटी और टेंडेंसी हो तभी जाकर हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स लिखी हूँ ऑक्सीजन का, जहाँ पे ऑक्सीजन पहले एक न्यूट्रल गैसेस एटम में होता है. जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वो मोनोवेलेंट आयन ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर कि उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज़ द माइनस 141 किलोजूल पर मोल. पर जब एक मोनोवेलेंट ऑक्सीजन आयन में हम फिर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा O2 माइनस, दैट इज़ द डाइवेलेंट आयन. Here in the first step, when the oxygen monovalent ion is formed, the del S value, that is the electron gain enthalpy value, is negative. But in the second step, when the oxygen ion, when add an extra electron to its outer shell, it will be form the oxygen divalent ion, that is the del S value is contain the positive sign. Why this will be like this? Because in the first step, when the neutral gaseous atoms gain an extra electron, it will be release energy. But when the ion, that is the monovalent ion, which is present on the outer shell, an extra electron, here the second electrons will be come closer to the monovalent ion. There is a repulsion between the electrons and it will be required high amount of energy to add the second electron, so it will be in the positive sign. So next come to the factors which are depends upon the electron gain enthalpy.
ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड्स करता है? फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक साइज बच्चों, जो कि एटॉमिक साइज टोटली डिपेंड्स करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या होगा। तो अगर बच्चों हम दो एटॉमिक साइज ले, एक का एटॉमिक साइज लार्जर है, एक का एटॉमिक साइज स्मॉलर है. As you know, when the atomic size is larger, the force of attraction between the proton and the electrons, or you can say the nucleus and the outer shell electrons, will be weaker as compared to a smaller atomic size. जहाँ पे एक स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है वहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है. तो उसमें क्या होता है बच्चों, जहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा होता है, मतलब लार्जर एटॉमिक साइज के केस में जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, देन दैट विल बी वेरी इजी टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल because there is less force of attraction, or you can say there is more shielding also. But in case of a smaller atomic size, the force of attraction between the nucleus and the outer shell electrons is very good, and there is strong force of attraction. So when we add an extra electron, we require high amount of it will release high amount of energy to add extra electron. So that's why the atomic size will be when the atomic size will be decreases, the electron gain enthalpy increases. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ the size of an atom increases with decreasing electron gain enthalpy. So it means the atomic size is inversely proportional to our electron gain enthalpy. So next come to the second one, that is the न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड्स करेगा, जो कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि अगर जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चों क्या होगा, हम लोगों को मीन्स दैट एटम्स विल बी रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम्स हायर एंड इट विल बी मोर नेगेटिव. ठीक है, तो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बच्चों सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब है स्टेबल. अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक स्टेबल कन्फिगरेशन में है, स्टेबल कब बोलेंगे, जब वो कम्प्लीटली हाफ फिल या फिर कम्प्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल्स में होगा, तब उसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बच्चों हमको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगता है, क्योंकि दैट वन इज स्टेबल. अगर कोई स्टेबल चीज़ को तुम अनस्टेबल बनाना चाहोगे तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगा. कोई अनस्टेबल है, उसको स्टेबल बनाना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होगा, कम एनर्जी यूज़ होगा, ताकि वो क्या कहता है कि इजीली एक्सेप्ट कर लेता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए. हर कोई चीज़ जो खुद को स्टेबल बनाना चाहता है बच्चों, तो इसलिए अगर कोई सिमेट्री है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है. नेक्स्ट कम्स टू द वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब क्या है कि अलॉन्ग द पीरियड्स क्या होगा, अलॉन्ग द ग्रुप्स क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉन्ग द पीरियड. पीरियड में बच्चों, जो कि मैं यहाँ पे डायग्राम में भी शो की हूँ कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. तो जो मैं फैक्टर्स में बोले कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो सेम हियर इज ऑल्सो when we moving from left to right along the period, the atomic size decreases with increasing electron gain enthalpy value. If you are taking along the group, here it is the group, here it is in the reverse formation. Okay, this one, along the group when we move from top to bottom, जब हम along the group आएंगे तब क्या होता है, एटॉमिक साइज बच्चों हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल. तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक साइज, तो हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए. तो यहाँ पे बच्चों ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन कर लेते. ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो ये हमारा हो गया, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो हियर these are two questions for you, so you have to answer it. So now comes to the second topic, that is the electronegativity. So what is electronegativity?
बच्चों जो भी एलिमेंट्स में जो भी मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स का टेंडेंसी और यू कैन से द पावर और यू कैन से द कैपेसिटी, जो एलिमेंट्स का कैपेसिटी होता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया गया है, इसका मतलब है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके तरफ लाने का टुवर्ड्स द इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So, if we say in simple words, then the relative tendency of an element in a molecule, एक molecule में to attract the shared pair of electrons, जो कि electrons share करके एक bond create किया गया है, वो shared pair of electrons को to attract itself is known as electronegativity. उसको हम electronegativity बोलते हैं. ठीक है. So let's start giving an examples. If I am taking this one is a hydrogen and this one is a fluorine, here the molecules is HF, hydrogen fluorides. In between the hydrogen fluorides, fluorine has a higher tendency or you can say power of elements which will be attract the shared pair of electron to itself, and it will be form F minus and it will be form H plus, where the partial charge will be created on the fluorine atoms and the partial negative charge created on the fluorine atom and the partial positive charge is created on the hydrogen atom. सो लेट्स से कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से डिपेंड्स करता है और फैक्टर्स को इफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एन एटम, जैसे कि मैं बोले साइज आइदर स्मॉल हो सकता है या फिर लार्जर हो सकता है. जो कि बच्चों लार्जर साइज होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बहुत ही कम होता है. सो इट्स प्रूव दैट व्हेन ए साइज ऑफ एन एटम स्मॉलर देन दैट विल बी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट इफ़ यू आर टेकिंग द न्यूक्लियर चार्ज, बच्चों जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, साइज स्मॉलर होता है. तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड्स करता है. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू अगर ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है. सो लेट्स स्टार्ट टू द वेरिएशन. सो वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, अलॉन्ग द पीरियड, जैसे कि हम लोगों को पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है जो साइज छोटा है, इसका मतलब है जो स्मॉलर साइज है उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा. इसका मतलब है व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑल्सो increases with increasing force of attraction and decreasing the atomic size. If you are taking the along the group, then as you know on moving from top to bottom, जैसे कि हम लोगों को पता है अगर हम एक ग्रुप में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है बाय द इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यू कैन से द नंबर ऑफ सेल और यू कैन से द shielding effects. So that's why the atomic size increases and the force of attraction between the nucleus and the outer cell electrons, that is called the valence electrons, also decreases. यहाँ पे force of attraction क्या होता है, decrease होता है क्योंकि atomic size increase होता है. तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो इस टाइप से हमारा पीरियड्स और ग्रुप में वेरिएशन आ जाता है. सो नेक्स्ट कम्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन आवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के साथ क्या है. सो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है हमारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करता है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीजेस. बट इफ वी आर टेकिंग द मेटालिक प्रॉपर्टीज देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टीज. इसका मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा वहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगा. तो if we are taking in the periodic tables, when we are moving from left to right, that means in a period the atomic size decreases and the electronegativity values increases. As you know, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, here these are present on a one period and the atomic size decreases and the electronegativity value here the
increases. That means on moving from left to right the non-metallic properties also increases. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, अगर हम मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फिर इसका मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग अलोंग द ग्रुप, अगर हम ग्रुप के बारे में देखेंगे तो ग्रुप में क्या होता है बच्चों, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. अगर यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस एंड द मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलोंग द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजेस. तो ये होता है हमारा ऑल टोटल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर ऑन द periodic trends. So thank you.